مظفرآباد سے اسپیکر اسمبلی چوہدری انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے ہیں اور چوہدری انوار الحق آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بلا مقابلہ نئے قائد ایوان منتخب ہوئے۔ چوہدری انوار الحق آزاد کشمیر کے 15ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ قائد ایوان کے انتخاب میں چوہدری انوار الحق نے 48 ووٹ حاصل کیے۔ چوہدری انوار الحق LA7 بھمبر سے 2021 کے عام انتخابات میں ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ چوہدری انوار الحق 2021 سے بطور اسپیکر قانون ساز اسمبلی خدمات انجام دے رہے تھے۔ چوہدری انوار الحق اس سے قبل بھی اسپیکر اور وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ سابق سینئر وزیر چوہدری صحبت علی مرحوم کے صاحبزادے ہیں۔ تحریک انصاف کے اس ہاتھ نہیں کیا جا سکتا پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج مجھے اس سازش کا علم ہوا کہ انوار الحق پارٹی قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ میں جماعت کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ آزاد کشمیر کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ میں ایک فارورڈ بلاک کی صورت میں آگے آ رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی کو کہا کہ مجھے خان صاحب نامزد کریں گے۔ سردار تنویر الیاس کا چوہدری انوار الحق کے وزیر اعظم منتخب ہونے پر رد عمل سامنے آ چکا ہے اور کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ نہیں کیا جا سکتا، پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، ابھی مجھے سازش کا پتہ چلا ہے کہ ہمارے جو اسپیکر تھے چودھری انوار صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں پارٹی بچانے کے لیے یا حکومت بچانے کے لیے ایک سٹیپ اٹھا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کو کچھ اور کہا اور اسٹیبلشمنٹ جو یہاں کی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس کو یہ کہا کہ میں ایک فارورڈ بلاک بنا لوں اور فارورڈ بلاک کی صورت میں آگے آ رہا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ کہا کہ میں فارورڈ بلاک بنا رہا ہوں، مجھے عمران خان صاحب نامینیٹ کریں گے، لیکن ان کے سامنے میں PTI ہوں اور آپ کے سامنے میں فارورڈ بلاک۔ اس وقت ایک بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کے نظریے اور ویژن کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کے مشاورتی اجلاس کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے۔ آئینی و قانونی امور پر مستقبل کی حکمت عملی سے متعلق مشاورت ہوئی اور حکمران اتحاد کا عید الفطر کے بعد سربراہی اجلاس بلانے کا فیصلہ ہوا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اگلے مرحلے میں لے جانے پر اتفاق ہوا ہے۔ شجاع آباد سے خبر ہے، کھاکی کے علاقے میں کھیتوں سے 6 سالہ بچے کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ہادی عباس نامی بچہ شام 4 بجے سے لاپتہ تھا۔ تھانہ صدر پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ ملک جاوید اس بارے مزید بتائیں گے۔ جاوید، تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی؟ جی بالکل، جلال پور کھاکی کے علاقے بستی جلال میں کھیتوں سے 6 سالہ بچے کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ عبدالہادی عباس نامی بچہ شام 4 بجے سے لاپتہ تھا، جس کو علاقے میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوسٹیں لگا کر تلاش کیا جا رہا تھا۔ تلاشی کے دوران قریبی کھیتوں سے بچی کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ تھانہ صدر پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی اور قانونی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے بچے کی لاش کو تحویل میں لیتے ہوئے پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات جاری ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد مزید جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ جی شکریہ آپ کا۔ اور اب شوال کے چاند کی بات کریں گے کہ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا، تاہم محکمہ موسمیات اور ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ آج شوال کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ عید الفطر 22 اپریل ہفتے کے روز ہوگی۔ رپورٹ دیکھیے۔ شوال کا چاند آج نظر آنے کا کوئی امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات اور ماہرین فلکیات نے رمضان المبارک کے 30 روزے پورے ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ ماہرین محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں شوال کے چاند کی پیدائش 20 اپریل کی صبح 9:12 پر ہوگی اور کراچی میں غروب آفتاب شام 6:57 پر ہوگا۔ یوں غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 9 گھنٹے 45 منٹ بنتی ہے، جبکہ رویت کے لیے چاند کی عمر 18 سے 20 گھنٹے ہونی چاہیے۔ یوں سائنسی طور پر چاند نظر آنے کا بالکل امکان نہیں ہے۔ چاند کی جب ہم بلندی دیکھتے ہیں، چاند کی جب ہم روشنی دیکھتے ہیں اور جب ہم چاند کی عمر دیکھتے ہیں تو اس کے حساب سے جو ہے یہ تمام چیزیں نفی میں جاتی ہیں اور اس بات کے امکانات قوی طور پر نہیں ہیں کہ
किसी किस्म की जो है रुयत जो है उस दिन यानी कि 20 तारीख को मुमकिन हो सके। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज सूरज गुरूब होने के वक्त चांद उफक से 3 डिग्री ऊपर होगा, जबकि चांद के नजर आने के लिए उसका उफक पर जाविया 7 से 8 डिग्री होना चाहिए। 20 अप्रैल को चांद और सूरज के गुरूब होने के दरमियान वक्त 20 मिनट का है, जबकि चांद नजर आने के लिए ये वक्त कम अज कम 40 मिनट होना चाहिए। 20 अप्रैल को चांद की चौड़ाई भी कम होगी, जो दिखाई देने के लिए नाकाफी होगी। सनसेट और मून सेट के दरमियान जो दौरानिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नए चांद नज़र आने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि 40 मिनट का दौरानिया होना चाहिए। 20 तारीख को कराची में जो चांद का एल्टीट्यूड है ये तकरीबन 3 डिग्री है। आम तौर पे चांद नज़र आने के लिए कहते हैं कम से कम 7 से 8 डिग्री होना चाहिए, तो उस लिहाज से एल्टीट्यूड भी बहुत कम है, तो इसलिए चांद नज़र आने का इम्कान कम है। माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि 21 अप्रैल जुमे के रोज़ बलोचिस्तान के शहर सिब्बी में चांद नजर आने के कभी इम्कानात हैं। मुल्क के जनूबी इलाकों में रात 8:30 से 9 बजे तक चांद देखा जा सकेगा। पंजाब में खुली आंख से चांद नजर आने का इम्कान बहुत कम है। जुमे का रोज़ 21 को यानी कि तकरीबन 8 बजे के बाद 8:30 के करीब ना आपको सिब्बी के इलाके में चांद नज़र आने के चांसेस हैं वहाँ पे, जिसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि इंशाल्लाह कि ईद जो है वो बरोज़ हफ्ता हो जाए। माहिरीन का ये भी कहना है कि साइंसी पैरामीटर्स के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ते को होगी। रवां साल फितराने की औसत रकम 320 रुपये मुकर्रर की गई है। मुस्तहिक़ीन को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए फितराने की रकम नमाज ईद से कबल अदा करना ज़रूरी है। रिपोर्ट देखिए। फितर माली इन्फाक है जिसकी अदायगी का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात से पहले उस साल दिया जब रमजान का रोजा फर्ज हुआ। सदका फितर मुस्तहिकीन को अदा किया जाता है, जिसका अदा करना हर साहिब हैसियत शख्स के लिए जरूरी है, ताकि गरीब और मस्कीन लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। सदका फितर को रोजादार की तहारत और पाकी का जरिया भी करार दिया जाता है। फितराने की अदायगी नमाज ईद से कबल जरूरी है। साहिब निसाब का होना ज़रूरी है, और साहिब निसाब का माना यह है कि उसके पास पाकिस्तान में इस वक्त 1,03,159 रुपये से ज़ायद रकम हो। साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, इससे कम रकम हो या इससे कम उसके पास सेविंग हो तो उसके ऊपर सदका फितर अदा करना ज़रूरी नहीं है। उलमा कराम का कहना है कि फितराने की अदायगी हर बालिग और नाबालिग फर्द के लिए वाजिब होगी जो ईद के रोज घर में मौजूद होगा। किसी घर में आने वाले मेहमान और पैदा होने वाले बच्चे का फितराना भी इस घर के सरबराह के जिम्मे वाजिब होगा। सदका फितर हर छोटे बड़े के ऊपर फर्ज है। घर के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ सदका फितर को अदा करना चाहिए। जो घर में बड़ी उम्र के बुजुर्ग होते हैं उनकी तरफ सदका फितर को अदा करना चाहिए। अगर ईद उल फितर की फजर की अजान से पहले कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसका सदका फितर भी वालिद के जिम्मे होगा। शरीयत की रूह से फितराने का निसाब गंदुम, आटा, जौ, खजूर, किशमिश की कीमतों पर मबनी है। वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मुताबिक सदका फितर की मकदार आम तौर पर 2.5 से 3 किलोग्राम गंदुम मुकर्रर है। उलमा कराम का कहना है कि रवां बरस गंदुम के एतबार से फितराने का निसाब कम अज कम रकम 320 रुपये फी फर्द बनता है। जौ की कीमत के तनासुब से 480 रुपये फी फर्द अदा किया जा सकते हैं। खजूर की मार्केट कीमत के तनासुब से कम अज कम 1600 रुपये, किशमिश की कीमत के एतबार से फितराना 2500 रुपये बनता है। उलमा का कहना है कि मुख्तलिफ शहरों में अजनास की मुख्तलिफ कीमतों के तनाजुर में सदका फितर की रकम में मामूली कमी पेशी की जा सकती है। सदका फितर के लिए नियत करना जरूरी है। वो नियत करेगा तो सदका फितर अदा होगा। अगर वैसे वो सदका खिरात कर रहा है और उसकी ये नियत नहीं सदका फितर की तो वो सदका फितर अदा नहीं होगा। इसके लिए उसको अलहदा तौर पे बाकायदा नियत करनी पड़ेगी। उलमा कराम की राय में ये जरूरी नहीं कि सदका फितर सिर्फ मुकर्रर करदा शरह के मुताबिक ही अदा किया जाए। कोशिश की जानी चाहिए कि साहिब हैसियत अफराद इस शरह से ज्यादा अदा करें ताकि सदका लेने वाले का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर समात सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क किए अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया गया मगर सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल से आगाह नहीं किया गया। सियासी जमातें एक पेज पर आ जाएं तो गुंजाइश निकाल सकते हैं। हुकूमत 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी करे।
तमाम सियासी जमातों को आला अहदेदारान के जरिए आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की हिदायत। वफाक, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। हुकूमत 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी करे। 4 अप्रैल का फैसला वापस लेने की वजारत दिफा की इस्तदा कबूल नहीं की जा सकती। फंड्स की अदम फरहमी से मुतालिक वजारत खजाना की रिपोर्ट भी नाकाबिले कबूल करार। पंजाब में फंड्स की अदम फरहमी और मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात की दरख्वास्तों पर अलग अलग तहरीरी फैसले जारी। मुल्क में एक साथ इंतखाबात के हवाले से तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बादियो नजर में सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मौका देने की राय दुरुस्त है, लेकिन मुज़ाकरात का मौका देने का मतलब हरगिज नहीं कि 14 मई को इंतखाबात का हुक्म खत्म हो गया। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की अदम फरहमी पर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत उज़्मा ने कहा है कि आइन असेंबली तहलील होने के 90 रोज में इंतखाबात का कहता है। सियासी मुज़ाकरात आइन से मुतसादिम नहीं होने चाहिए। वज़ारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समात होने की बुनियाद पर निपटाई जाती है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को भी मुस्तरद कर दिया। फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालती कार्रवाई को दोबारा से नुक्ता आगाज पर लाना चाह रहा है। इससे कबल 3 रुकनी बेंच में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल का कहना था कि फंड्स के मामले पर असेंबली करारदाद के जरिए अपनी राय दे चुकी। चीफ जस्टिस ने कहा, समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। इंतहाबी अखराजात जरूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं। हुकूमत फैसला करे या असेंबली को वापस भिजवाए, क्योंकि इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, सिक्योरिटी मसाइल माजी में भी थे मगर इंतखाबात हुए, क्या गारंटी है 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। वजारत दिफा ने भी अंदाजा लगाया, अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया गया मगर सिक्योरिटी का मसला किसी ने नहीं उठाया। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है कि मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराए जाए, ये दरख्वास्त नाकाबिले समात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का इलेक्शन के बारे में डेडलॉक ख़त्म करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मुशावरत की तरगीब देना खुशाइंद है और वो इसकी तायद करते हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा सियासी इख्तिलाफात पसे पुश्त डालकर मुल्क के वसी तर मफाद के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक साथ बैठने पर जोर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और तमाम सियासी अमायदीन से मुलाकातें करें और मुशावरत के साथ तमाम जमातों से इलेक्शन से मुतालिक दरमियानी राह इख्तियार करने में मुस्बत किरदार अदा करें। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी कमेटी ने इलेक्शन एक्ट की शिक 57(1) और 58 में तरामीम मंजूर की। तरामीम के बाद इंतखाबात की तारीख ऐलान सदर के बजाय इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन एक्ट में तरामीम के मामले पर तश्कील करदा पार्लिमानी कमेटी का इजलास कन्वीनियर नवीद कमर के ज़ेर सदारत हुआ। सेनेटर ताज हैदर ने तजवीज़ दी, सदर से इख्तियार इलेक्शन कमीशन को ज़रूर दिया जाए लेकिन उन्हें मुतला भी किया जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, ECP के हाथ बांध दिए गए हैं, तौहीन करने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कमेटी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तजवीज़ करदा तरामीम की मंजूरी दे दी। सदर ममलकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 से दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिया। सदर ममलकत का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल की तौसीक पर अमल नहीं हो सकता। मामला अदालती फोरम के सामने ज़ेर समात होने के बायस इस पर मजीद एक्शन नहीं हो सकता। सेनेट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी से मुतालिक बिल मुस्तरद करने की कायमा कमेटी खजाना की सिफारिशात कसरत राय से मंजूर कर ली, जबकि चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफे से मुतालिक नैब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सेनेट इजलास में इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी से मुतालिक बिल मुस्तरद करने की कायमा कमेटी खजाना की सिफारिशात मंजूर कर ली गई। हुकूमती इत्तेहाद को 26 जबकि मुखालफत में 19 वोट पड़े। कायमा कमेटी की सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवाई जाएंगी। कौमी असम्बली पहले ही इंतखाबात के फंड्स की फराहमी से मुतालिक मिनी बिल मुस्तरद कर चुकी है। सेनेट ने वज़ीर कानून की जानिब से कौमी एहतिसाब तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया। इस दौरान अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी और शोर शराबा किया। पेशावर से खबर है, इंश्योरेंस कंपनी ने सेहत कार्ड प्लस पर अस्पतालों में दाखिले बंद कर दिए। इंश्योरेंस कंपनी का तमाम पैनल अस्पतालों, सेहत कार्ड के हेड ऑफ फैसिलिटेशन और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स को मुरासला जारी कर दिया गया। सेहत कार्ड प्लस के तहत दाखिलों पर आर्जी पाबंदी लगा दी गई है।
20 अप्रैल से पैनल्स पर मौजूद तमाम अस्पतालों में ताहुक्म सानी नए दाखिले बंद रहेंगे और अस्पतालों में कायम सेहत कार्ड के हेल्थ डेस्क बंद रहेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा है इमरान खान पैगामात भेज रहे हैं कि पहले केसेस ख़त्म किए जाएं। ऐसे शख्स से मुज़ाकरात से पहले सोचना पड़ेगा। 4 साल मुसल्लत रहने वाले टोले ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। वो शख्स जो मुज़ाकरात का माने ना जानता हो, अपने झूठ अपने केसेस को ख़त्म करने की खातिर मुज़ाकरात करता हो। इमरान खान साहब ये पैगामात भिजवा रहे हैं कि वो अगर उनके केसेस ख़त्म कर दिए जाएं तो वो मशरूत कर रहे हैं इसको मुज़ाकरात को। उसके साथ मुज़ाकरात करते हुए सोचना पड़ता है। 4 साल मुल्क के ऊपर एक गैर आइनी तरीके से आने वाला टोला जो मुसल्लत था, उसने जो इस मुल्क के साथ किया, आज शर्मिंदगी और ढिठाई के साथ कहते हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं। 2022 अप्रैल में मौजूदा हुकूमत आई, उस वक़्त मुल्क हर ज़बान पर यह था कि अभी 1 महीने में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, 2 महीने में दिवालिया हो जाएगा। इकॉनमी और मईशत कोई स्विच ऑन या स्विच ऑफ बटन नहीं होती, लेकिन उस माशी तबाही के बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को दिवालिया से बचाया। कहता है इलेक्शन करना है, वो अपनी मिलने को 1 करोड़ रुपए की कीमत लगा रहा है और टिकटों की कीमत लगा रहा है। टिकट मिल जाएगी, उसकी कीमत क्या है, अभी वो ऑडियोज आना बाकी हैं। कच्चे के इलाके में पुलिस, सीटीडी और दीगर फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है और मजीद 2 दहशतगर्द मारे गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं अब तक दर्जनों डाकुओं और दहशतगर्दों का कला कमा किया जा चुका है। आईजी पंजाब का ईद के दिनों में भी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। अल्लाहु अकबर। कच्चे के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पुलिस, सीटीडी और दीगर फोर्सेस ने मजीद 2 दहशतगर्द मार डाले। ऑपरेशन में अब तक दर्जनों डाकू और दहशतगर्द हलाक। जदीद बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए डाकुओं की पनागाहों को बतदरीज खत्म किया जा रहा है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कच्चे के इलाके में दहशतगर्द इंटरनेट और ट्विटर इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्दों के बैरून मुमालिक भी राब्ते हैं। तालिबान के व्यूज हमें वहाँ से मिले, उनके फुट प्रिंट मिले, क्योंकि वहाँ पे जो ट्विटर और फेसबुक और दूसरे अकाउंट चल रहे थे। AIES सिस्टम के जरिए हमें पता चला, जो हमारा अपना पाकिस्तान का बनाया हुआ सिस्टम है, कि वहाँ से टेलीफोन कॉल्स कुछ ऐसी हो रही हैं, इंटरनेशनल लिंक्स उनके साबित हुए। तब वहाँ पे हमने ये ऑपरेशन को बड़ी तेजी के साथ शुरू किया। आईजी पंजाब ने कहा कि डाकुओं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ईद के दिनों में भी जारी रहेगा। कच्चे के इलाके को क्लियर करने के बाद वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, पुलिस चौकियाँ बनाएंगे। पंजाब हुकूमत 11.5 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। पंजाब की इरिगेशन की हमारी चौकियाँ थी, उन्हें मजबूत करके पुलिस के साथ उनको किया है। लिहाजा पुलिस और इरिगेशन ताकि वहाँ पे काम भी कर रही है इकट्ठे जाके, ताकि हमारे प्रोजेक्ट जल्दी से जल्द कंप्लीट हो सके। हाँ, सड़कों के और ब्रिजेस के प्रोजेक्ट तो अरबों रुपए के हैं जो अब शुरू हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ईद भी हम वहीं गुजार रहे हैं। आईजी पंजाब ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के लिए बोनस तनख्वाह का भी ऐलान किया।